and today I'm just here coming back to the soil that I was born in, and I'm super excited to hear what your questions are. Please feel free to ask me anything, and I'll try my best to answer it with the full sincerity and honesty, so that we all want me to lose touch with my Goan roots. So that just felt like the best spot to be and to celebrate both my Goan roots and the fact that I'm living in Karnataka. So I think that एक होता है लोगों की एक जन्मभूमि होती है, एक कर्मभूमि होती है. Like many of you might not be living in Goa, or at least for work. Many of you have migrated to different places. So I don't think that moving somewhere makes me any less Goan. I'm born here and I have Goan blood, and that's the reason that I am representing Goa. And this time I got the honor of doing justice to my Janmabhoomi and my Karmabhoomi being Karnataka. Someday maybe I'll do justice to that. But today I stand here not just as a Goan, but as an Indian right in front of you, representing all the states and all the union territories of our country. And I hope to learn more about every culture so that I can represent it the best during Miss World. Thank you. Any offer you got for movies and all? Well, it's just been about 2 weeks, and we have been getting quite some big campaigns. As you know that Femina Miss India is also taken up by Times Group, right? So they have really good industry connections, and it has been such a legacy, and because of the backing that they have, the backing that Times Talent has, I've been getting a lot of offers for advertisements and all of it within just 2 weeks of crowning. In fact, we are trying to manage how do we manage my appearances here and also, commit to other work as well. But if your question is if I ever want to get into movies, I would say that right now I have a very big responsibility. So ये ताज अपनी एक responsibility के साथ भी आता है, which is to represent our country on Miss World platform. And I only have about a year to prepare for it. So right now that's my main focus. हाँ, अगर कोई मूवी ऑफर आती है and if I'm skilled enough, क्योंकि मूवी एक्टिंग ये एक कला है, इसको सीखने में भी बहुत वक्त लगता है, तो I completely respect that. And maybe someday अगर भगवान चाहे कि तब मैं skilled भी हूँ और मेरे लिए correct opportunity भी present हो, तो why not? But for now, Miss World is my biggest goal. What was the most difficult part when you have been in this journey for you? I think the most difficult part is sort of to believe कि इतने सारे जो लड़कियां हैं उनमें से तुम एक ऐसी लड़की हो सकते हो जो जीत पाए. तो ये सेल्फ डाउट हम सबको होता है. लाइक कोई जॉब एप्लीकेशन लगाने से पहले आप भी सोचते हो 10 बार कि मिलेगा ये मुझे या नहीं. तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मैं उस डर के कारण मैंने अपना प्रिपरेशन बहुत डिले किया. प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसे. तो मैंने काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेट किया. बट एक चीज़ जो है, जो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत बोला करते थे कि आपके फ्रेंड्स या तो आपके लाइफ को मेक कर सकते या फिर ब्रेक कर सकते. तो मेरी कंपनी काफ़ी अच्छी थी एंड मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी पुश किया कि जब मैं भी डाउट में थी वो मेरे साथ ऑडिशन में आए पूरा टाइम और उन्होंने मेरी पूरी मदद की है. तो उस रीज़न की वजह से मैं आज इधर हूँ कि जब मुझे खुद पे डाउट था तब उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया. तो इसी करेज के साथ मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया है. Now, being a youngster, what message you want to give the other youngsters in this field? For the young generation. Right. I think there's a lot of stigmas related to pageants. But I think that agar you want something very badly in your life, then you should go give it a shot. Because आप फेल हो सकते हो एंड देन आप वापस उठ सकते हो. बट अगर आपके पास एक वो रिग्रेट रह जाता है लाइफ में, तो देन यू विल नेवर बी एबल टू शेक इट. पूरा लाइफ व्हाट इफ के चक्कर में निकल जाएगा. तो माई ऑनेस्ट एडवाइस इज इफ यू लव समथिंग, पुट योर फुल एफर्ट विथ ऑल ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी and go after it, and you never know what might work out for you. And
आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस एज अ विनर, शायद अगर मैं विन भी ना होती तो भी वो एक विजिबिलिटी जो ये प्लेटफॉर्म देती है उससे बहुत कुछ बदल सकता है किसी के लिए. एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स who want to get into this industry, it's a very great platform. तो मेरा यही मानना है कि अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने रूट्स को भी कभी मत भूलिए. जैसे कि हम सभी के अपब्रिंगिंग, हमारे हम्बल बिगिनिंग्स बहुत अलग होते हैं और एक बार आप किसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो आप अपने लोगों को भूल जाते हो. बट मेरा यही मानना है कि हमेशा जिन्होंने आपकी पूरी मदद की है उनको हमेशा याद रखिए, उनके साथ मिलकर आगे बढ़िए, तो बहुत अच्छा सिंपल हो जाता है सब कुछ. Anything for Goans in Konkani also? So my Konkani obviously is also shaped by Karwar Konkani. But मागेल एकूच तुमका message होता कि you know as Goans, as Karwarians, कोण भी आता मागेल message पडत असत. What we are representing आता ते it's a far bigger feat what we have achieved. Let's not get hung up कि गोवा, कारवार अशें. You know, we are all, आम्ही सगळे लोक सेम कोंकणीच उलयतात. थंय तेतूंत इल्ले डायलेक्ट चेंज आसा, इल्ले स्पश्ट वेगळे लोक इल्ले यू नो एक्सेंट इल्ले वेगळे आसा. सो हेचेर खूब फोकस करनाकात बिकॉज वॉट आर वी प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड. वी आर शोइंग दैट वी आर डिवाइडेड इवन एज नेबर्स. इन अ स्मॉल स्टेट टू स्टेट हम डिवाइडेड दिखा रहे हैं अपने आप को. तो लेट्स नॉट स्प्रेड एनी हेट, लेट्स बी काइंड. सगळे लोक बरे करून हासत खेळत रावया. म्हाका बी तुमगेर खूब सपोर्ट जाय आनीक हांव बी तुमकां रिप्रेजेंट करच्याक खूब यू नो हांव खूब प्रिपरेशन केलां. सो तेजे एक म्हाका यू नो एक मातशें तुमगे सायडीनच्यान इल्लें सपोर्ट मेळ्ळ्यार आय विल बी मच हॅपी. How you are looking for this Miss World competition? Well, right now the preparation has already begun. We've just started with our etiquette class, which teaches you like table manners, you know, and you'll be sitting with a lot of diplomats, lot of world leaders and people from various countries. So ये छोटे छोटे मैनरिज्म्स जिसको यूज करके आप पोलाइटनेस दिखाते हो या फिर रिस्पेक्ट दिखाते हो लोगों को. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एंड आवर प्रिपरेशन विल इंक्लूड वॉइस मॉड्यूलेशन, अपना जीके वगैरह, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना, एंड ऑल्सो हाउ टू इम्प्रूव योर वॉक, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करना होता है. ये सारी चीज़ें छोटी लगती हैं सुनने में भले, बट आप जब उसको इन डेप्थ समझते हो तब ये बहुत वास्ट टॉपिक है. तो अभी फिलहाल इसी चीज़ की तैयारी चल रही है, पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो दैट हमारी निकिता पोरवाल जी, उनका इसी साल वो अभी मिस वर्ल्ड के लिए जा रही है, तो उनको भी सपोर्ट कीजिए. भले ही वो गोवा से नहीं है, हम सभी भारतीय हैं, तो सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़िए. मैम, ये कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मैं अपने कामयाबी का श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स और मेरी नानी को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी जर्नी ने मुझे इंस्पायर किया है. कि ऐसा एक वक्त था जब यू नो मेरी नानी, मतलब यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड शी इज, एंड एट दैट टाइम शी वाज रेजिंग लाइक 4 daughters with just a simple income of sewing. My grandfather, मेरे नाना, he was a havildar. तो you know they have come from very humble beginnings, and उस टाइम पे उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी करवाई, जो बहुत बड़ी बात है. एंड उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स ने भी किया है, उसी की वजह से मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ. साथ ही में मैं जब पहली बार इस फील्ड में उतरी थी तब मैं ऑलमोस्ट 10 kg हैवी थी, आज से ज़्यादा. एंड तब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैंने जब उनको बोला कि मुझे ये करना है, तो मेरे साथ वो हर दिन बिना एक दिन भी मिस किया हर दिन मेरे साथ जिम आया करते थे. तो और मेरे हर ऑडिशन के टाइम पे भी 7-7, 8-8 घंटे वो लोग बाहर बैठ के मेरा वेट करते थे. आजकल के ज़माने में ये कोई नहीं करता. तो मेरा इस चीज़ का श्रेय एक तो मेरी मिट्टी के लिए जाता है, बिकॉज दिस सॉइल हैज़ टॉट मी रेजिलियंस. यू नो हमारे फिशरमैन को ही देख लीजिए आप, सुबह उठते हैं, बोट लेके निकल पड़ते, पता नहीं आज का दिन कैसा होगा, मिलेगा कुछ या नहीं, बट वो इस हिम्मत के साथ जो निकलते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो निकलते हैं, आई थिंक दैट हैज शेप्ड माई लाइफ अ लॉट. एंड ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, एंड एनीबडी हुज एवर सपोर्टेड मी.
और demotivated me, because कहीं ना कहीं all of it leads to today, and I'm very happy. Just to talk about these soils, मिट्टी से जुड़े कुछ यादें हैं कि जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हम रोड ट्रिप किया करते थे गोवा में, क्योंकि भले ही लाइक इट सीम्स लाइक अ वेरी स्मॉल स्टेट, देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर, वाटरफॉल से लेके बीच से लेके हर एक चीज़। एंड मेरे पापा को बहुत ड्राइविंग का शौक था, पिकनिक बनाने का बहुत शौक था। तो मेरे जो भी चाइल्डहुड पिकनिक्स हैं जो मुझे अभी तक याद है वो मोस्टली गोवा में ही है, क्योंकि जब हम कारवार शिफ्ट हुए तब मेरे पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो गए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गई, तो उसके बाद ज़्यादा मुझे घूमने फिरने का मौका नहीं मिला। तो जो भी बाहर घूमना, नंगे पैर घूमना, आजकल कोई करता नहीं है ये सारी चीज़ें। तो ये जो छोटी छोटी यादें हैं मेरी सिर्फ गोवा से ही जुड़ी है। How much you miss Goa's fish curry rice? Oh my god, a lot. Actually, my favorite is the prawn curry. Of course, it's just unbeatable. And when I was studying in Canada, so after my studies in Karwar, I moved to Indus International School in Bangalore, and then from there I moved to Canada. And वहाँ पे most of the food is very bland. तो जो वो फ्लेवर, वो जो टेस्ट और वो जो मतलब बीच साइड बैठ के एकदम अपने दोस्तों के साथ सनसेट देख के खाना खाना, ये चीज़ बहुत याद आती थी मुझे, अभी तक आती है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि मैं ट्रेनिंग पे आई हूँ, तो मैं इस साइड बिल्कुल भी नहीं आई। तो खाना तो यहाँ का सबसे बड़ा स्पेशलिटी है, और हर कोई मतलब हमारा जो विंदालो है, चिकन विंदालो हर जगह पे फेमस है। इवन कनाडा में ये मेन्यू में डाला करते थे, लिखते थे कि गोवन स्पाइसेस, बट जो अपना गोवन स्पाइस है वो अलग ही है, उसका मज़ा ही कुछ और है। मैम मॉडलिंग ही करियर क्यों आपने सिलेक्ट किया, इसके पीछे? ऑनेस्टली सर, अगेन मुझे हर फोटोग्राफी का काफ़ी पहले से शौक था। तो मेरे पापा वो हमेशा एक हैंडी कैम लेके घुमा करते थे, क्योंकि मैं उनकी पहली डॉटर, आपको तो पता ही होगा कि जो पहले बच्चे फर्स्ट किड्स होते हैं उनको बहुत प्रिविलेज मिलता है कि पेरेंट्स पूरा सब कुछ, वो इधर से उधर पे उठ के जाए तो भी रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वो यही क्या करते थे, एंड मैं वो देख देख के बड़ी हुई हूँ। फिर मेरा फोटोग्राफी में भी ध्यान लग गया, जैसे कि मेरा ये आप देख सकते हैं टैटू है मेरे पापा के लिए। तो एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे समझा कि मैं जितना मैं लेंस के पीछे भी एंजॉय करती हूँ उतना मैं लेंस के आगे भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, और जब मैंने अपने दोस्तों को बोला तो उन्होंने बोला यू हैव टू डू इट। और मैंने सोचा एक ही लाइफ है, अगर एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करूँगी, अभी जब यंग हूँ तो तभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी। तो हाँ, बस ऐसे ही घुसी थी एक मेगा मॉडल हंट जो प्रसाद पिज़्ज़ापा जी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, एंड ही हैज़ लॉन्च्ड फेसेस लाइक दीपिका पादुकोण, अनुष्का, ऑल ऑफ दीज पीपल। तो तभी आई जस्ट वेंट फॉर एन ऑडिशन बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने अगेन मुझे फोर्स किया, एंड आई गॉट थ्रू। एंड उसके बाद से जो जर्नी निकली है, जहाँ मतलब जिस स्पीड से निकली है ना, ये 1.5 ईयर, बस इतना ही टाइम हुआ है मॉडलिंग करके। Who's been your role model? I think my role model is definitely my grandmother, and as I discussed earlier कि उनका जो ट्रेजेक्ट्री है, और मुझे ना बहुत मज़ा आता था क्योंकि मैंने आपको बोला जिसने मैं कारवार में आई शिफ्टेड तब मेरे पेरेंट्स थोड़े बिजी हुआ करते थे। तो मोस्टली मैं उनके बेड टाइम होने के बाद मैं उनके बाजू में जाके सो जाती थी, तो मैं उनको हमेशा उनकी स्टोरीज पूछा करती थी। तो उन्होंने जिस तरह मतलब संघर्ष किया है, उन्होंने जिस तरह पूरी सोसाइटी को फेस किया है, बस वो देख के मुझे बहुत करेज फील होता था कि पता नहीं, जैसे आपको लगता है ना कि आप कोई मूवी देख के आते हो तो अगले दिन आपको लगता है कि अगर मूवी का हीरो सोल्जर है तो आपको भी सोल्जर बनना है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि जब मैं नानी की बातें बार बार सुना करती थी, तो आई जस्ट न्यू कि आई वांटेड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड आई वांटेड टू बी अ वॉइस फॉर अदर वीमेन एज वेल। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है where you can do that. How can you describe the word of struggle in your life, especially for the ये platform के लिए? I think before I get to struggle, I would like to be honest that I've had quite a lot of privilege. जो मेरे पेरेंट्स ने जितना स्ट्रगल किया उतना मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, एंड उनकी इस स्ट्रगल की वजह से आई एम हियर टुडे। बट एट द सेम टाइम स्ट्रगल थोड़ा रिलेटिव भी होता है। जैसे जब मैं इस जर्नी में आई थी
तो काफ़ी सेल्फ डाउट था. जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई वॉज मच हैवियर. तो स्ट्रगल एज सच बाहर से नहीं था, बट मेरे दिमाग के अंदर ही था. दैट कॉन्फिडेंस का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उस चीज़ का स्ट्रगल, या फिर कनेक्ट्स बनाना, करेक्ट फोटोग्राफर से मिलना. ये सारी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री चीज़ें हैं जो इफ़ यू डू इट राइट देन इट वर्क्स आउट फॉर यू. बट टाइम लगता है, वक्त लगता है. तो इन दैट सेंस एंड एक डिसिप्लिन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आप सुंदर हो तो आप किसी मंच पे जाके चल लो और आपको ये किताब मिल जाए. आपका वॉक पॉलिश्ड होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए. अभी आप जैसे जब मीडिया वाले ऐसे इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं तब उसका जवाब भी देना आना चाहिए. तो काफ़ी चीज़ें हैं इन पैजेंट्स के बारे में दैट पीपल डोंट नो. तो इन दैट सेंस आई वुड नॉट से स्ट्रगल, बट इट वॉज अ लर्निंग कर्व. And in that I learned a lot, and I'm very happy that I took that chance. Thank you mama papa, thank you to all my friends कि आपने मुझे तभी भी पुश किया जब I was ready कि नहीं यार it's okay, शायद नहीं होगा. तो thanks to all of them कि ये struggle नहीं लगा. मैम कल कोई मूवी में आपको काम मिलेगा तो कौन से एक्टर के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? वैसे तो कोई भी एक्टर के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होगी, बट हाँ एक फेवरेट एक्टर होते हैं मेरे लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा जी हैं. बट अगर हमें ऐसे विशफुल थिंकिंग करना ही है तो लेट्स प्रे कि मेरा पहला मूवी इज अ फीमेल लीड मूवी, कि एक्टर ही नहीं है. फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, पूरा स्पॉटलाइट मुझे मिल जाएगा. तो हाँ यही है मेरा जवाब. थैंक यू. थैंक यू.